Hello students, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. In our previous video we had talked about the internal structure of the anther, and in this lecture we will discuss about the process of microsporogenesis. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो एंथर का स्ट्रक्चर देखा था, एक टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर इस टाइप से हमारे पास था, ठीक है, और इसमें हमारे पास ये था एक माइक्रोस्पोरेंजियम. दिस इज द कंप्लीट एंथर वॉल जिसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट थी, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड द इनरमोस्ट लेयर इज टैपेटम. Here, this is the complete anther wall. Now we will talk about this one. This is called as microsporangium, and the cells of microsporangium are called as archisporial cells. This is microsporangium. 4 microsporangia will there. Clear? These are the archisporial cells, or they are also called as sporogenous cells. Clear? In the young stage of anther, these cells are compactly packed without any intercellular space. ठीक है, जब हमारे पास एंथर मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है, ये सेल्स अपने एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर होना स्टार्ट हो जाती है. सेल के शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ गैप आ जाता है. ठीक है, इट मींस इंटरसेलुलर स्पेस इनमें आ जाता है. नाउ this sporangia, microsporangia is called as pollen sac, and the cells are called as microspore mother cells. क्लियर? ये आ गई हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. जब इसकी सेल्स दूर दूर हो जाएंगी, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस आ जाएगा, जब एंथर मैच्योर होगा, तो microsporangia will convert into the pollen sac, and the archisporial cells will called as microspore mother cells. These cells are capable of doing meiosis cell division. So all of these cells can undergoes meiosis cell division. These are the microspore mother cells. They can produce the pollen tetrads by meiosis cell division. This is the connective tissue between this. By meiosis cell division, one microspore, this will undergo one meiosis and forms a microspore tetrad. Clear? क्योंकि हमें पता है एक सेल में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा. दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेट्राड, और इस टेट्राड में सेल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, the cells may be arranged like this pattern. ठीक है, 3 सेल्स यहाँ पे है और एक सेल इसके बैक साइड में है. This type of arrangement is called as tetrahedral arrangement. Clear? If the cells are arranged like this, this is called as isobilateral arrangement. Thirdly, the cells may arrange like this. All the 4 cells arranged like this. This is called as linear type of arrangement. And if the 4 cells are arranged in this pattern, then it is called as T-shaped
or decussate type of tetrad. Clear? So this is the arrangement of cells in the microspore tetrad. In the angiospermic plants, most common type of arrangement is tetrahedral arrangement. Clear? तो ये जो आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, मियोसिस सेल डिवीजन से इन्होंने क्या बनाया हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. ये आ गए माइक्रोस्पोर टेट्राड्स which are in which the cells are arranged in tetrahedral manner. These are the microspore tetrads. Clear? Now we will see the structure of single microspore. ठीक है? After maturation, these all microspores will separate each other. ठीक है? सारी सेल्स, चारों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी और उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर और द मेल गैमेटोफाइट. ठीक है? उस मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हमें देखना है. किस टाइप का स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट का होता है. Clear? So we will talk about the structure of male gametophyte. Here the formation of microspore gets completed. So the microsporogenesis process gets completed. ठीक है? Microspores का formation हो गया है. Now we will see the structure of microspore or the male gametophyte. This is the plasma membrane of the male gametophyte. It is plasma membrane, the outermost membrane. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड हमें दो मेम्ब्रेन्स और देखने को मिलती है. दिस वन इज कॉल्ड एज इंटाइन. ये इनर होती है. दिस इज इंटाइन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड जो फर्स्ट मेम्ब्रेन है, it is called as intine and it is made up of cellulose and pectin. Now the outside of the intine membrane, this type of irregular shaped membrane is also there. This membrane is called as exine. Okay, तो ये वाली जो लेयर है इट इज एक्साइन. ये हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं होती है. ठीक है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बनी हुई होती है स्पोरोपोलेनिन की. एक्साइन ऑफ मेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. दिस स्पोरोपोलेनिन इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस इन द लिविंग वर्ल्ड. पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी. एंथर के बाहर जो स्पोरोपोलेनिन की लेयर होती है, इट इज सिक्रेटेड बाय द टैप्टम लेयर एंड दिस प्रोवाइड द रेजिस्टेंट टू द पोलन ग्रेन्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन, द पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड एट वेरी लो टेम्परेचर. That is called that is -196 degree Celsius temperature and this process is called as cryopreservation. इसके साथ ही बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड, ज्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, किसी भी चीज का इस पे कोई असर नहीं होता है. ठीक है? तो ये एकदम मोस्ट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन होती है. कुछ जगह पे आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. दिस इज एरिया इज कॉल्ड एज जर्म पोर. यहां पर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स थे. टेट्राड्स हमारे पास किस फॉर्म में आ गए हैं अब? इस तरह से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म में. दीज आर द माइक्रोस्पोर्स. क्लियर? एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोर. दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है? अब हमें देखना है मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से यहां पे होगा. अभी हमारे पास ये है सिंगल सेल्ड स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट. दिस इज द सिंगल सेल्ड स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट. दिस सेल विल अंडरगो वन माइटोसिस सेल डिवीजन. ये जो हमारे पास सेल है विदाउट इंटाइन एंड एक्साइन लेयर, this
cell having plasma membrane and nucleus along with the cytoplasm. This will undergo one mitosis cell division. As you all know that mitosis cell division is the equational division in which the cell divides to form two daughter cells. Clear? So the two daughter cells will form. First one is larger in size. This is the large cell, and the other one is smaller in size. This is the nucleus of this smaller cell. Clear? First, the larger cell is called as vegetative cell or tube cell. This is large in size, having dense cytoplasm which is rich in nutrients because it provides nourishment to the developing male gametes. Second one is the smaller cell which is called as generative cell. This is the generative cell. It is smaller in size and its cytoplasm is transparent, and this is the cell which produce male gametes. Transparent cytoplasm is there, and the cell, generative cell, produce male gametes. Clear? So this is the two-celled stage of the male gametophyte. 60% of the एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट इस टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं. ठीक है, हमने अभी यहाँ पे जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे हमारे पास मेल गैमेटोफाइट्स इस फॉर्म में आ गए हैं. इसके बाद यहाँ से दिस इज द सेंटर फॉर डेहिसेंस. यहाँ से ये सेल, ये इसकी जो एंथर वॉल है, ये एंथर वॉल डेहिस होती है, और डेहिस होने के बाद जो ये मेल गैमेटोफाइट्स है ये उस वॉल पे रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमेटोफाइट टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है. नाउ वी विल ऑल्सो नो अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द पोलन ग्रेन्स. ना दीज मेल गैमेटोफाइट्स आर कॉल्ड एज आफ्टर डेहिसेंस दे आर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन्स. ठीक है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा और जानना है. The study of pollen grains is called as pollinology. Clear? Study of pollen grain is called as pollinology. ठीक है, इसके अलावा many of the pollen grains are edible in nature. ठीक है, काफी सारे pollen grains का यूज edible substances बनाने के लिए करते हैं. For example, many tablets and syrups. These are the nutrient supplements. ठीक है, ये काफी न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, तो these are the nutrient supplements. इसके अलावा पोलन ग्रेन से बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है. That is called as pollen allergy. ठीक है, pollen allergy is commonly known as hay fever. Pollen allergy, it is commonly known as hay fever. ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन पोलन ग्रेन्स है जो एलर्जी कॉज करते हैं, दे आर द पोलन ग्रेन्स ऑफ पार्थेनियम. इट इज अ टाइप ऑफ ग्रास विच इज इंपोर्टेड विद द wheat फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन आवर कंट्री. और हमारे कंट्री के अंदर इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा ये हमारी कंट्री में ग्रो करता है, और इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं ये बेसिकली पोलन एलर्जी कॉज करते हैं. ये ग्रास इस टाइप की ग्रास है जिसको कोई एनिमल भी खाना पसंद नहीं करता. ठीक है, तो ये ग्रास जो है ये हमारे लिए पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा कॉज करने वाली होती है. ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द पोलन ग्रेन्स. ठीक है, 60% ऑफ द केस में मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, लेकिन जो बचे हुए 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें पोलन ग्रेन्स 3 सेल्ड स्टेज में भी रिलीज होता है.
3 सेल्ड स्टेज में होगा क्या, दिस जनरेटिव सेल विल अंडरगो द माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जनरेटिव सेल माइटोसिस सेल डिवीजन से डिवाइड होगी बाय टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल, और ये डिवाइड होकर हमारे पास क्या बनाएगी, 2 सेल्स का फॉर्मेशन और करेगी, एंड द पोलन ग्रेन विल कम इनटू द 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पोलन ग्रेन है, दिस इज इन टाइम, दिस इज द एग्जाइम। ठीक है, ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, और यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होकर 2 सेल्स में आ जाएगी। क्लियर, नरिशमेंट कहां से मिलेगा इसे, वेजिटेटिव सेल से ये नरिशमेंट लेती है। और इसके बाद जो हमारे पास ये जर्म पोर वाला हिस्सा है, इस स्टेज में ये क्या होगा, स्टिग्मा तक जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो पोलिनेशन की प्रोसेस से ये स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, और स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने के बाद पोलन ग्रेन्स का जो जर्म पोर वाला हिस्सा है, इस जर्म पोर वाले हिस्से से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और पोलन ट्यूब से ये दोनों जो मेल गैमेटोफाइट्स है ये एग एपरेटस तक ट्रेवल करेंगे। क्लियर, तो ये सारी प्रोसेस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।